Hello everyone, welcome back. And in this video, we'll be discussing some important questions and suggestions for this June 2024 exams of Financial Management MCO 07. And as we know, this chapter contains both theory and also numericals. So both you need to practice well for the exams. And these are all the contents. There are 19 chapters and we'll straight away start with unit 1. And before that, I would request you to subscribe my channel for such useful educational videos. And okay, so let's start with unit 1, financial management and overview. And from here you should revise this first question, very common question: what is financial management, and discuss its nature. So when we try to define financial management, basically in very simple words, it is called management of funds or finances. And basically it's not that much simple as it looks. It's a very big concept where it is a complete process of planning, organizing, directing and controlling the financial activities of a business organization. So that is what is called financial management. And when we talk about the nature of financial management, these three important activities are performed by a financial manager. The first one is he takes all the investment decisions, then financial decisions and dividend decisions. So when we talk about the investment decisions, as we know कि कंपनी ऑलवेज वो सर्च करती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स अच्छा मिलेगा. तो इन्वेस्टमेंट डिसीशंस में ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर फंक्शंस जो परफॉर्म करता है. लाइक ही मैनेजेस द वर्किंग कैपिटल, he buys all the fixed assets like machinery, land, building, then capital budgeting decisions and analysis of securities, जो security market stock market, उनकी analysis, and managing all the investments and merger decisions. So these are few important functions which are performed in investment decisions. And when we talk about the financing decisions, basically he tries to identify the different sources of finance from where a company can raise money. Then he also decides about the cost of raising finance. Then he makes an analysis of the different rates of interest which are prevailing in the market, and how much fund is required for capital, working capital, and also for fixed capital. And in the dividend decisions, as the name implies, here he decides how much dividend should be paid to the shareholders and how much fund should be taken out of profit to pay the dividends to the shareholders. And also he tries to find out the market value of the present equity share capital. Okay. The next question is evaluate the goals of financial management. What are the different goals of financial management? Basically these 5 objectives are there. The first one is maximizing the profit of the firm, and the second one is maximizing the return on capital. Then how to grow the market value of the shares or securities, and then identifying the sources of finance at minimum cost and minimum cost of capital. The first two goals of the financial management are most important, where he tries to maximize the profit of the firm and the different stakeholders or shareholders who have invested, so to pay them maximum return. So that is the basic function. Okay, now let's talk about the role of financial management manager in a modern organization and what are the different challenges faced by him as far as India is concerned. So when we talk about the role, that means the different functions already that we have discussed. So you can also elaborate those in this question if you get in an answer. And when we talk about the different issues or challenges of a financial manager in India, basically the first basic challenge is shareholders value creation, to pay them a return handsomely.
Then to study the psychology of the investors, because in India we have a mixed population of different classes, rich, middle class, and lower class. So all the investors are to be analyzed, and the psychology study is a very complex task, and also analyzing the different types of risk which are there in India. One more question, that is this a short note on risk return trade off. So as we know that no risk no return, so on that basis you need to write this note. ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं यूनिट 2 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी. यहाँ से आपको जनरली न्यूमेरिकल्स मिल सकता है, एंड शॉर्ट नोट में आपको मिल सकता है एक्सप्लेन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एज वी नो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कि मनी का जो वैल्यू है डे बाय डे इट डिक्रीजेस. सो ऑन दैट बेसिस लाइक वी गेट न्यूमेरिकल्स, जो मैंने यहाँ पे वर्कआउट भी किया है, एंड बेसिकली वी यूज दिस टू कैलकुलेट द टाइम वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. एंड ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू द पावर ऑफ n. सो इसके ऊपर आपको मिल सकती है न्यूमेरिकल्स. सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. आगे चलते हैं यूनिट 3 में, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़. एक शॉर्ट नोट कर सकते हैं ऑन द बेसिक वैल्यूएशन मॉडल ऑफ सिक्योरिटीज़. एंड this is like different cash flows will be given to you, and you have to find its the future value. So both the chapters are very closely related, and ये बेसिक वैल्यूएशन मॉडल पे आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है. So do practice this, and let's move on to the next concept. Explain the various approaches used to value equity shares. How to find the value of equity shares? Very important question for the exam. And basically we have two methods. One is dividend capitalization method, the earning, and second one earning capitalization method. In dividend capitalization we use this formula. इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलता है. P0 इक्वल टू D1 + P1 होल डिवाइडेड बाई 1 + R. सो ये सारे मैंने एब्रिविएशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो यू कैन नोट इट डाउन एंड प्रैक्टिस ऑन दिस. एंड मैं आपको बता दूँ डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच क्या होता है. दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट डिविडेंड डू नॉट ग्रो इन फ्यूचर rather than dividends grow at a constant rate or at multiple rates in future. So this is because जो टाइम पीरियड्स होती हैं, आई मीन जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दे जनरली दे फ्लक्चुएट्स एवरी ईयर, सो इट इज़ नॉट कांस्टेंट, एंड इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज इन फ्यूचर. सो दिस इज द मेन assumption of this approach. And earning capital approach, now in this approach three factors are considered. The first one is future earnings, second growth rate, and third PE ratio. ओके, सो ये तीन फैक्टर्स पे वी डिपेंड. बेसिकली अर्निंग पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है, कि भाई कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं. सो दैट इज़ लाइक अर्निंग पर शेयर. सो ये फॉर्मूला है पी रेशियो का, दैट इज़ प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. ओके, सो द नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स. इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, and you may also get the theory also. So as we know कि bonds are the debts of the company, and इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वी जनरली यूज़ दिस फार्मूला. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है ये, बट if you can manage it and work out a few numericals on it, that would be better for you in the exams. Unit 4 की तरफ चलते हैं, risk and return. Just now I was telling you about the risk return trade-off, and here like what are the various statistical techniques available to measure risk. As we know, there are so many types of risk are there in the business, and to measure this risk we generally use these methods. I mean statistical tools are there, techniques are there. The first one is standard deviation. We know about this, we have studied in MCO 03. And the coefficient of variation, we can find out the risk by way of skewness. I mean rank
correlation or something like that. Then probability distribution is there to measure the risk. So like that. The next question is explain the various types of risk in financial management. So these are the two types of risk. One is systematic, the other is unsystematic. Now systematic risk, that this type of risk is caused by external factors. That means which are beyond the control of the business enterprise. So they are called systematic risk. And this systematic risk again can be of four types. One is interest rate risk. As we know कि interest rate ये fluctuate होते हैं. And market risk है, as you can see in the demand and supply of the goods and services, or maybe change in the consumer's demand. The third one is exchange rate. ये थोड़ा सा international business पे है, where you know जो country की जो currencies हैं उनके exchange value हमेशा fluctuate करते हैं. So that is one type of risk. The other is political risk. अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, सो दिस पॉलिटिकल रिस्क इज क्रिएटेड. अनसिस्टमेटिक रिस्क में दिस टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस ड्यू टू द इंटरनल इवेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर हो गए, मशीन फेल हो गई, पावर कट हो गया, लेबर प्रॉब्लम हो गया. सो लाइक दिस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फर्म. You can also learn the difference between systematic and unsystematic risk. ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में मिल सकता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM, and basically this model shows us the relationship between the risk and return. And according to this model, greater the risk of a security, greater will be the return. इसी लाइन से आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाती है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की. एंड इस मॉडल में दो कंपोनेंट हैं, एक तो रिस्क फ्री रेट है और एक रिस्क प्रीमियम है. तो ये दोनों के फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. दिस द फार्मूला फॉर रिस्क फ्री. एंड इसके कुछ एजम्पशंस हैं. एज वी नो कि इम्पॉर्टेंट लॉ है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे इन्वेस्टर्स मेक देयर डिसीजंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न and risk associated with a investment. And an investor cannot influence the price of the stock market. ये obvious है, क्योंकि एक investor, I mean अगर हम लोग भी अगर shares खरीदते हैं तो हमें वो price उसके fluctuate नहीं कर सकते. And investors can lend or borrow funds, तो ये भी कर सकते हैं इन्वेस्टर्स. तो बेसिकली मोर और लेस सारे इन्वेस्टर्स पे हैं. एंड कुछ एक ये वाली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा कोई भी लॉ आप करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सो इट इज़ एज्यूम टू बी कांस्टेंट एंड देयर इज़ नो इनकम टैक्स पेड. तो ये दो जो हैं, ये दो एजम्पशंस आपको सभी में ही लिखने हैं. द नेक्स्ट वन इज़ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू this model, security should be sold at a high price and simultaneously we should purchase the security at a relatively lower prices. So this is the main sentence of this arbitrage pricing theory कि अगर आपके पास में स्टॉक है तो उसको हमेशा हाई प्राइस में बेचें जब वो बढ़ जाए, एंड साइमल्टेनियसली इमीडिएटली जो कम प्राइसेस के स्टॉक्स हैं उनको खरीद लिया जाए. सो द डिफरेंस will give you the return profit. Again there are assumptions of this. जैसा कि मैंने अभी बताया था, no transaction cost, the market is perfectly competitive and investors are just risk takers, they cannot manipulate the market, and investors have homogeneous expectations, so all the investors have the same expectation. Unit 5 में चलते हैं, cost of capital and the various uses of cost of capital. So कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन ये वाली सबसे सही है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न द फर्म मस्ट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स डजंट फॉल. और इन सिंपल वर्ड्स, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लाइक it is a rate of return and it is not an expense or cost. And return is calculated on the basis of actual cost of different components of capital, and it refers to the minimum rate of return on investment rather than maximum rate of return.
एंड इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान में रखना है। एंड दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. The first one is the return at zero risk level. Then we have a premium for business risk and premium for financial risk. And this cost of capital, its application in the financial management, like we can evaluate the new investment proposals, we can determine the optimal capital structure of the company, we can formulate the appropriate dividend policy for the shareholders, and we can also frame the appropriate working capital strategy. So like that बहुत सारे यूजेस आप लिख सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं अपने आंसर्स में. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये क्वेश्चन भी आपको करना है, आपको डिफरेंसेस में मिल सकते हैं. एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर, स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंबाइंड कॉस्ट पे, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट पे, एंड फ्यूचर कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. सो this needs to be revised well. Unit 6, capital budgeting 1, and what are the different processes involved in capital budgeting decisions. सबसे पहले तो समझ लीजिए कि capital investment decisions क्या होते हैं. Basically it is a process of making capital investment. I mean capital investment in the form कि भाई investment कहाँ पे करना है, plant, machinery, building, जो fixed assets हैं उन पे जो investment करती है कंपनी. So they are all included in capital budgeting decisions. उसकी budget तैयार करती है how much to be invested. Now these are the processes of capital budgeting where the first step starts with the generation of an idea कि how much, like किस पे investment करना है, and then you will estimate कि how much cash to be needed for the investment. Then you will try to evaluate the cash flows from which sources you can get the finance. And then you will select a good project which can give the maximum profits, and then you will try to execute the project. Okay, next question में चलते हैं. What are the different types of project investment, and also explain the requirements of a good method of capital budgeting decisions. तो कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करती है तो कितने टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं. तो नए प्रोजेक्ट पे कर सकती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनकी एक्सपेंशन में कर सकती है, रिन्यूअल कर सकती है जो करेंटली जो प्रोजेक्ट उसके पास में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या फिर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जहाँ पे कोई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग वगैरह जो होती है, सो वो. एंड दीज आर फ्यू रिक्विजाइट्स ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू take into account. Okay, next very important question for the exam. Explain the various methods of capital budgeting decisions and also write the merits and demerits of each method. So there are basically three methods. जो पहला है that is payback period, उसके बाद में ARR, accounting rate of return, and third discounted payback. तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम. पे बैक पीरियड में इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लोज. सो जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो जनरली वो एनालाइज करती है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल में या कितने महीनों में उसको रिटर्न मिल जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में बेसिकली हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करते हैं फॉर सम ईयर्स, एंड बेसिकली इट इज़ ए रेशियो बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पैट, एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्काउंटेड पे बैक में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है फॉर दिस, एंड इन दिस मेथड द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज और डिफरेंट ईयर्स आर कैलकुलेटेड ऑन अ पे बैक सिस्टम. एंड बेसिकली इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकता है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस दोज न्यूमेरिकल्स. यूनिट 7 में चलते हैं. कैपिटल बजटिंग डिसीजन 2 एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एंड इसके भी आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स याद रखने हैं. ये अगेन यहाँ पे 3 मेथड है फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. जो पहला जो सबसे पॉपुलर मेथड है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसके बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. एक और मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, PI मेथड, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. सो द फर्स्ट मेथड ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकेंड वाला चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में.
यहाँ पे यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेशियो ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, एंड उनकी जो डिफरेंसेस होती है दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1 द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। ओके, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली इट एज्यूम्स दैट कि एनपीवी इज जीरो, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ डिस्काउंट एंड एनपीवी। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, जहाँ पे जो पिछले जो दो मेथड है उनका कॉम्बिनेशन है IRR। सो ओके, ये आपको डिफरेंस करनी है एनपीवी और IRR पे, एग्जाम्स पे काफ़ी टाइम आता है ये भी। एक शॉर्ट नोट कर सकते हैं कैपिटल रेशनिंग पे, मैं आपको समझा दूं शॉर्ट में कैपिटल रेशनिंग क्या होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय अ कंपनी। सो जैसे हमारे कुछ रेशनिंग गवर्नमेंट करती है कि भाई जो कमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक फिक्स प्राइस पे बेची जाए, नॉट मोर देन दैट। सो लाइक दैट यहाँ पे कंपनी भी रेशनिंग कर सकती है। ठीक है, सो डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे। यूनिट 8 पे चलते हैं, सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस है टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड है, जहाँ पे कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसी को ही वापस कंपनी इन्वेस्ट करती है। इक्विटी कैपिटल ये सबसे पॉपुलर मेथड है, जहाँ पे कंपनी रेज करती है कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल जानते हैं, दोनों ही मतलब शेयर कैपिटल हैं। देन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, डेट कैपिटल, ये भी बहुत ही पॉपुलर मेथड है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करती है। टर्म लोन ले सकती है बैंक से, एंड वेंचर कैपिटल। एंड इनके आपको शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, एंड इनके जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ओके, आगे चलते हैं। यूनिट 9 में कैपिटल मार्केट पे है, एंड मेन पर्पस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो एज वी नो कैपिटल मार्केट इज a system where the securities are bought and sold, and the different purposes or benefits of this capital market are it mobilizes the savings of the investors, like जो ideal cash पड़ा हुआ होता है, so we can invest and make money. Then we can it helps to fix the prices of the shares. It helps in the liquidation of the financial asset. We can buy and sell our securities at any time that we like, and it is very inexpensive, economical also. One difference you can do between capital market and money market. So okay, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इसका डिफरेंस भी मैंने इसको करना है एग्जाम्स के लिए आपको। आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इशूइंग IPO बाय ए कंपनी। एज वी नो कि जब कंपनी IPO इशू करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इन हाउ मेनी वेज इट कैन इशू दैट। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ डायरेक्ट सेल कर सकती है इन्वेस्टर्स को। इट कैन सेल थ्रू द प्रोफेशनल फर्म्स, कुछ प्रोफेशनल फर्म्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू से सेल कर सकती है। सेकेंडरी स्टॉक इशू कर सकती है, ऑक्शन कर सकती है, नीलामी कर सकती है, एंड इवन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो उसके प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं उनको डायरेक्टली भी सेल कर सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इशूइंग IPOs। आगे चलते हैं। वाई इज द स्टॉक एक्सचेंज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कैपिटल मार्केट, और द फंक्शंस ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। जस्ट नाउ आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, सेम चीज़ आप लिख सकते हैं, लिक्विडिटी, सेफ्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैरोमीटर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक दिस थिंग। तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पीपल अर्न ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके, what means are employed to regulate the stock exchanges in India? Who regulates these stock exchanges in India? Basically हम लोग जानते हैं दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है BSE दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है। MCO 07 पे मेरे यूनिट वाइज वीडियोज़ भी हैं पूरे, आई थिंक 34-35 वीडियोज़ हैं। सो प्लीज़ वॉच ऑल दीज वीडियोज़, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम्स।
एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. उसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको हाईलाइट करनी है, स्पेशली सेबी. यूनिट 10 में चलते हैं, लीज फाइनेंसिंग. व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग. So basically when we try to lease a fixed asset, where like we will use the asset and pay some ransom amount as rent to the owner, so that is called lease. And these are the different benefits of lease financing, where the risk of ownership of the asset can be avoided, and the company can pay the rent as convenient by him. There are some tax advantages also, and disadvantages में it is bit expensive, and strict actions can be taken by the owner in case of the defaulters, and economic value lose करती है. रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस हो सकती है. आई मीन एसेट जैसे जैसे यूज़ करते हैं पुराना हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. एंड देर आर सो मेनी कॉम्पिटिशन्स इन इंडिया. तो ये लीज फाइनेंसिंग भी वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड देर आर सम लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल. एक डिफरेंस कर सकते हैं लीजिंग एंड हायर परचेज पे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन. ओके, आगे चलते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीज फाइनेंस. तो ये फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, डायरेक्ट लीजिंग, देन सेल एंड लीज बैक एंड लिवरेज लीजिंग. तो दिस 5 टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसेस विच आर अवेलेबल इन इंडिया वेयर द कंपनी कैन लीज फ्रॉम. ओके, आगे चलते हैं. यूनिट 11 में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, एंड यहाँ पे आपको डिफरेंस करना है बिटवीन कॉरपोरेट फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. सो प्रोजेक्ट जब अंडरटेक करते हैं तो कुछ एक कंडीशंस कंपनी को ध्यान रखने चाहिए. दैट द प्रोजेक्ट शुड बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एंड द प्रोजेक्ट शुड हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू, उसका रिटर्न मिलना चाहिए. एंड जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल होने चाहिए. द प्रोजेक्ट शुड बी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पीपल, सो लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. ये बहुत सारी रिस्क हैं, कुछ एक यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको याद रखनी है. एक तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का रिस्क, अदरवाइज हो सकता है आपको पेमेंट रोक दे. देन टेक्नोलॉजी चेंजेस होती रहती हैं तो वो उसको लेके रिस्क है. रॉ मटेरियल्स अगर नहीं मिले टाइम से तो वो एक रिस्क आ जाती है. मेंटेनेंस रिस्क होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे मान लो हाईवे बना दिया, ब्रिज बना दिया, तो उनके मेंटेनेंस भी वो दैट इज़ ऑल्सो ए रिस्क. इकोनॉमिक वैल्यू अगर नहीं मिली, कंपनी को रिटर्न नहीं मिला इन्वेस्टमेंट पे, तो वो फिर इकोनॉमिक रिस्क आ जाती है. फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, अगर आपको रिटर्न नहीं मिला, या फिर जहाँ से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंस रेज करना है तो अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिला, सो दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम. गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो ऑब्वियसली दैट कैन हैम्पर. देन सम एनवायरमेंटल रिस्क आर ऑल्सो देयर. सो दीज आर फ्यू रिस्क विच यू कैन मेंशन इन योर आंसर. ओके, यूनिट 12 की तरफ चलते हैं. व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ फोरेक्स. फोरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड एज वी नो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के यहाँ पे आपको बताना है डिफरेंट फंक्शंस फोरेक्स मार्केट को. तो यहाँ पे यू कैन ईजिली ट्रांसफर द मनी. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज टू द इन्वेस्टर्स. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ हेजिंग. सो ये भी एक तरीके से इट एक्ट एज अ इंश्योरर फॉर द रिस्क. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स. एक तो स्पॉट मार्केट है जहाँ पे ऑन द स्पॉट वी कैन ट्रेड इन फॉरेन करेंसी. फ्यूचर मार्केट है जहाँ पे वी कैन एक्सचेंज द करेंसी एट अ फ्यूचर रेट. फॉरवर्ड मार्केट है. सो ये 3 टाइप के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है विच आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया. And the next question is describe the various risk which an exporter faces or the trader faces while dealing in foreign currency. ये 3 रिस्क है. सबसे पहला तो ट्रांजैक्शन रिस्क.
Second, economic risk and translation risk. Transaction risk, as the name implies, जो transactions होते हैं between the buyer and seller, तो अगर एक डेट पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया एंड आफ्टर सम टाइम अगर करेंसी की वैल्यू अगर चेंज हो गई, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, सो देयर अराइजेस द ट्रांजैक्शन रिस्क. इकोनॉमिक रिस्क में अगर वर्ल्ड के जो कस्टम्स, टैक्सेस, ये सब चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशंस हो गए, सो देयर वहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क आ जाती है. एंड ट्रांसलेशन रिस्क है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है. ट्रांसलेशन रिस्क आई विल शो यू हियर. तो यहाँ पे जब कंपनी आउटसाइड ऑफ द कंट्री जब ट्रांजैक्शंस करती है, सो उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, सो यू हैव टू मेंटेन इन फॉरेन करेंसी. तो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि वो फ्लक्चुएट होते हैं. सो दैट acts as a problem for this. The next one is, what are the various types of international bonds which are traded in international market? तो bonds, as we know, debt capital है, एंड ये कुछ टाइप के बॉन्ड है जैसे डोमेस्टिक बॉन्ड विच आर जनरली इश्यूड एंड बॉट एंड सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट. यूरो बॉन्ड्स हैं जो बेसिकली यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इसकी. एंड फॉरेन बॉन्ड्स होती है जो एमएनसी एक डोमेस्टिक कंट्री में इशू करती है. सो लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट. सो ये कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में जिसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है. तो सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी, डेराइवेटिव प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे. इंटरनेशनल करेंसी मार्केट है जहाँ पे ओनली करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग होती है. यूरो करेंसी मार्केट है, तो यहाँ पे यूरोपियन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स like this treasury bills, commercial paper, euro commercial paper, certificate of deposit, bankers acceptance, bonds. So ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं which are traded in money market. ओके, यूनिट 13 में चलते हैं. लिवरेज ऑपरेट, यहाँ पे 3 टाइप के लिवरेज है. एंड लिवरेज का मतलब मैं बता दूं आपको. द टर्म लिवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स और फंड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो जो कंपनी के पास में ऑलरेडी जो फिक्स्ड एसेट्स है, हाउ इट इज गोइंग टू यूज दैट सो दैट द शेयर होल्डर्स कैन बी पेड हैंडसमली ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज कॉल्ड लिवरेज. एंड दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेज: ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड टोटल. इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज को डिफाइन करने के लिए यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला. इट इज़ अ रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT. EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने के पहले जो अर्न कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड EBIT. एंड इसकी इंपॉर्टेंस लाइक दैट. फाइनेंशियल लिवरेज को जब आप डिफाइन करेंगे तो सिंपल है. इट इज़ ए रेशियो बिटवीन EBIT डिवाइडेड बाई EBT. Now EBT is earning before tax. EBIT is earning before interest and tax. तो फ़र्क है बस इंटरेस्ट का. EBIT में इंटरेस्ट के पहले, EBT में इंटरेस्ट के बाद. एंड जो नेक्स्ट लिवरेज है दैट इज ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके फ्रेंड्स, यूनिट 14 में चलते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ ए अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर. सो द कंपोजिशन ऑफ ऑल दिस कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स. तो इसका जो कंपोजिशन होता है दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी. एंड द मेन फीचर्स और ऑफ ए गुड कैपिटल स्ट्रक्चर are, you can write these 4 points here. It should be flexible. We can change that, modify that as and when required. It should have profitability. It should be profitable. It should have solvency. We can liquidate that as and when required, and it should be under the control of a company. So these things you need to prepare. The next question is, explain the important assumptions
of net operating income approach theory of capital structure. Now, this theory was given by Durand, and according to this theory, a firm can raise its value by decreasing the overall cost of capital, which is measured in terms of WACC. WACC stands for weighted average cost of capital. इसका बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगी. Like a change in the financial leverage of a firm will lead to a corresponding change in the WACC of the company. So, according to this approach, the increase in leverage or the proportion of the debt, so that will lead to decrease in weighted average cost of the equity and debt capital. Few assumptions that you need to learn for this net operating income approach. So, like that, you can get a short note on net income approach of capital structure. And here the market value of a company can be increased or decreased. Increased by decreasing the cost of capital and increasing the debt capital. So this line defines the net income approach of capital structure, and then you need to learn the various assumptions. The next question is explain the important assumptions of Modigliani and Miller proposition, one of the very, very important question, and you must revise this at any cost. The assumptions of MM proposition 1 and 2, both very important one. Unit 15 में चलते हैं, dividend policy. Why do firms pay dividends? इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाया था मैंने अभी. एंड डिफरेंट एडवांटेजेस. बेसिकली इन्वेस्टर्स लाइक डिविडेंड्स, एंड क्योंकि इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली ही लाइक्स टू हैव सम रिटर्न ऑन दैट, एंड इट एक्ट्स एज ए इंफॉर्मेशनल सिग्नल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी and a tool for changing the firm's financial mix. It also reduces the management discretion, कि भाई मैनेजमेंट की जो एक ये होती है, जो मोनोपोली होती है, तो वो भी डिक्रीज करता है. सो देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ पेइंग डिविडेंड्स. एंड what are the factors that determine the dividend payout ratio of a company? So these are all 5 factors you need to expand in your answer. जैसे what are the different opportunities available for a company, and liquidity position, how much cash inflows and outflows are there with the company. The debt market condition, what about that? Market conditions कैसी है debt market की, and control considerations हैं and कुछ other considerations. तो dividend देने के पहले company always have a look on this. Then the next question is explain briefly the various types of dividend policies practiced by the company. तो ये 2 पॉलिसी है, एक तो स्टेबल और एक रेसिडुअल. तो स्टेबल होती है जहाँ पे कंपनी एक फिक्स रेट में डिविडेंड पेमेंट करती है. रेसिडुअल अगर प्रॉफिट अगर बचता है then only the company issues the dividend. Then the next question is what is the rationale behind buybacking of shares. तो बेसिकली यहाँ पे रीपरचेज करती है कंपनी, जो पहले जो सेल करती है कंपनी शेयर्स उसको वापस ले लेती है. तो दैट इज़ कॉल्ड बाई बैकिंग ऑफ शेयर्स. एंड कुछ एक कंडीशंस में ही करती है कंपनी, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ द कंपनी द फाइनेंशियल पोजीशन इज साउंड, सो इट कैन ऑप्ट फॉर दिस. ओके, आगे चलते हैं. वर्किंग कैपिटल. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल. जैसे कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, उसकी साइज़ कैसी है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं. वी कैन राइट अ लॉट अबाउट दिस. देन एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी. एंड ये इनफॉर्मल क्रेडिट या फॉर्मल क्रेडिट, तो यहाँ से 2 सोर्सेज से कंपनी रेस कर सकती है फंड्स फॉर मीटिंग इट्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. ओके, आगे चलते हैं. मनी मार्केट, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं. एंड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन मनी मार्केट. ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली.
इसमें ये रिपो एंड रिवर्स रिपो ट्रांजेक्शन्स, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो बी वेरी पर्टिकुलर वाइल लर्निंग ऑल दिस। ओके, यूनिट 17 है कैश मैनेजमेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड द वेरियस फंक्शंस ऑफ कैश मैनेजमेंट, तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। एंड द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डूइंग कैश मैनेजमेंट, राइट। देन कम्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट आर द पर्पस ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, सो दिस क्वेश्चंस वेरी कॉमन क्वेश्चंस। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्रीज। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो ये 4 मेथड आपको लर्न करने हैं एट एनी कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ टेक्निक, रीऑर्डर लेवल, ABC एनालिसिस एंड जेट, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग, लर्न एवरीथिंग। ओके, देन वी हैव शॉर्ट नोट कर सकते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल पे। देन दिस इज द लास्ट यूनिट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, क्रेडिट पॉलिसी, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेडिट पॉलिसी क्या हो सकती है कंपनी की, एंड दीज आर ऑल द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। सो एक फैक्टरिंग पे शॉर्ट नोट बिल्कुल करके जाएं एग्जाम्स के लिए। देन व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। देन वी हैव ऑन SPV एक शॉर्ट नोट, स्पेशल पर्पस व्हीकल पे, इस पे शॉर्ट हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी बनाया था, नाइस वन। देन वी हैव फ्यू न्यूमेरिकल्स दैट यू कैन प्रैक्टिस बेस्ट, like you can practice all the the examples which are there in your book, so that will make you more confident. Okay friends, thank you very much for watching this video, and I hope your exams will go well, and have a nice day.